Good morning, students. So, in this class, we will discuss about the human immune system. And in last class, we discussed about the vaccination, immunization, about allergy and autoimmunity. And next topic is our, that is human immune system. Human immune system. So in case of humans, the human immune system consists of some cells, tissues, molecules like antibodies and lymphoid organs. So in our last lectures, we have already discussed about the cells, tissues and molecules which composes our immune system. And in this class, we will basically study about the lymphoid organs. So first of all, what are these lymphoid organs? So these lymphoid organs, they are the site for origin, maturation, differentiation, and for proliferation of lymphocytes. So these lymphoid organs are the site for origin, for maturation, for differentiation, for functioning and proliferation of lymphocytes. Now further, human beings have two types of lymphoid organs. Human beings have two types of lymphoid organs which are known as the primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. These primary lymphoid organs includes the bone marrow and thymus. So we will first discuss about the primary lymphoid organs only. So it includes the bone marrow and thymus. So primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. And primary lymphoid organs are the organs where the origin, the maturation and differentiation or proliferation of two types of lymphocytes occurs. That is the B lymphocytes and T lymphocytes. So first we will discuss the bone marrow. So in primary lymphoid organs, we will first discuss the bone marrow. So this bone marrow, it is the site or it is the primary lymphoid organ where the origin of two types of lymphocytes occurs. That is the B lymphocytes and T lymphocytes. So bone marrow is the site for the origin of B lymphocytes and T lymphocytes. Now these B lymphocytes, after their origin in bone marrow, they undergo maturation, differentiation and proliferation. Within bone marrow. And these B lymphocytes, they are responsible for production of 90% of IgG and IgE antibodies in human beings. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है सेल से, टिश्यूज से, मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज. ये हमने पहले स्टडी कर लिए कुछ लास्ट लेक्चर्स में. इस लेक्चर में हम बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे. तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? ये साइट है जहां पे हमारे लिम्फोसाइट्स ओरिजिन होते हैं, मैच्योर होते हैं,
डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्रोलिफरेट यानी कि अपनी फंक्शनिंग कैरी आउट करते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमारे अंदर दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं और दूसरे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है उसमें एक हमारा बोन मैरो आ जाता है और दूसरा थाइमस है। अब जो बोन मैरो है ये साइट है जहां पे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स इनके ओरिजिन के बाद ये मैच्योर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं विद इन द बोन मैरो के अंदर ही। और बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर 90% ऑफ आईजीजी और आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज थाइमस। सेकंड जो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो थाइमस है, वो डिस्कस करेंगे अभी हम। तो दिस थाइमस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस थाइमस इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और कहां प्रेजेंट होता है थाइमस ह्यूमन बींग्स के अंदर? इट इज लोकेटेड, ये लोकेटेड है जस्ट अबव हार्ट, जस्ट अबव हार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी इन थोरेसिक कैविटी। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो थाइमस है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा, इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे इसका थाइमस का। इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एक लोब ये है यहां और दूसरा लोब ये है, सो इट इज एच शेप्ड स्ट्रक्चर। तो हमारा थाइमस कैसा है? इट इज एच शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारे हार्ट के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, बॉडी की थोड़ी सी लेफ्ट साइड में लोकेटेड है और थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स एक बार जब वो ओरिजिनेट हो जाते हैं कहां पे? बोन मैरो में, फिर ये टी लिम्फोसाइट मूव करते हैं, दे मूव टू थाइमस, वो थाइमस में मूव कर जाते हैं फॉर देयर मैच्योरेशन, उनके मैच्योरेशन के लिए एंड फॉर प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो थाइमस एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, वो एच शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके पास दो लोब्स प्रेजेंट है, वो लोकेटेड है अबव हार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, इन थोरेसिक कैविटी। टी लिम्फोसाइट्स एक बार बोन मैरो में ओरिजिनेट होने के बाद मूव करते हैं थाइमस के अंदर फॉर देयर मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। तो ये अभी तक हमने डिस्कस जो किया है दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नाउ विल डिस्कस द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। So secondary lymphoid organs, they includes the spleen, lymph node, malt, that is mucosa associated lymphoid tissue, and galt. This galt is gut associated lymphoid tissue. So the secondary lymphoid organs includes the spleen, the lymph node, malt, that is mucosa associated lymphoid tissue, and galt, that is gut associated lymphoid tissue. Now we'll discuss each of them in details. So our first is spleen. So in case of human beings, this spleen, it is a secondary lymphoid organ which is located towards left side of body, towards
left side of body, higher up in abdominal cavity, higher up in abdominal cavity. So spleen, it is a secondary lymphoid tissue or secondary lymphoid organ that is located towards left side of our body, higher up in the abdominal cavity. So it is located in our abdominal cavity in a little higher up region. Now this spleen, it is specialized for filtering of blood. तो हमारी जो स्प्लीन है ये स्पेशलाइज्ड है फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड के लिए. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रैपिंग ऑफ ब्लड बोर्न एंटीजेंस. तो इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर एंट्रैपिंग ऑफ ब्लड बोर्न एंटीजेंस. और ये ब्लड बोर्न एंटीजेंस को एंट्रैप करती है, इसका मतलब इट कैन रेस्पॉन्ड टू सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस. उसके अलावा जो हमारा स्प्लीन है, इट कंटेन्स लार्ज रिजर्वोयर्स ऑफ आरबीसी सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स. सो कंटेन्स लार्ज reservoirs of RBC cells, RBCs और the erythrocytic cells. तो क्या डिस्कस किया अभी तक हमने, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो इंक्लूड करते हैं स्प्लीन, हमारे अंदर लिम्फ नोड, मार्ट जो कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, गाट जो कि गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है. इसमें जो हमारी लिम्फ है वो लोकेटेड हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के हायर अप रीजन में लोकेटेड है. और स्प्लीन स्पेशलाइज्ड है बेटा फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड की फिल्टरिंग के लिए, और ये स्पेशलाइज्ड है फॉर एंट्रैपिंग ऑफ द ब्लड बोर्न एंटीजन. जो ब्लड बोर्न एंटीजन्स है उनको एंट्रैप करने के लिए स्पेशलाइज्ड है. दूसरी बात इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्पॉन्ड कर सकती है सिस्टमैटिक एंटीजन्स को या सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस को. एंड दिस स्प्लीन इट आल्सो कंटेन्स द लार्ज रिजर्वोयर्स ऑफ आरबीसी सेल्स. अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, दैट इज लिम्फ नोड. सो सेकंड इज लिम्फ नोड, एंड दिस लिम्फ नोड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट इज एनकैप्सुलेटेड. ये एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है और बीन शेप्ड है. एनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. और दिस लिम्फ नोड इट कंटेन्स अ फाइब्रस नेटवर्क. इसके पास एक फाइब्रस नेटवर्क प्रेजेंट है और ये पैकेज होता है बेटा, इट इज पैकेज्ड विद, दैट मींस इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, इट इज पैकेज्ड विद large amount of cells like the macrophages, dendritic cells and lymphocytes. So lymph node is a secondary lymphoid organ in case of human beings which is encapsulated and bean shaped structure है. ठीक है, इट कंटेन्स अ फाइब्रस नेटवर्क. इसके पास एक फाइब्रस नेटवर्क प्रेजेंट है और ये पैकेज्ड होता है विद लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स. और हमारा जो लिम्फोइड या लिम्फ नोड है, इट इज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू. इट इज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू. ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है बेटा जो कि उन एंटीजेंस के साथ एनकाउंटर करते जो हमारे टिश्यू स्पेसेस में एंटर करते. सो दे आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स which encounters with antigens that enters in tissue spaces,
अब ये जो एंटीजन्स है बेटा, जो टिश्यू स्पेसिस में एंटर करते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ, ये एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन lymph node. So the antigens which are present in tissue spaces, which are entrapped in tissue spaces, they are responsible for activation of lymphocytes present in lymph node, and then these lymphocytes carries out the phagocytosis of these antigens. That means they kills or neutralizes these antigens. Now we'll discuss our last secondary lymphoid tissue, that is MALT. So this MALT, it is mucosa associated lymphoid tissue, lymphoid tissue। तो ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड लिम्फोइड जो टिश्यू है बेटा, उनको हम क्या नाम देते हैं? शॉर्ट फॉर्म एज MALT। तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, विच लाइंस, जो लाइन करती है बेटा कि कहां प्रेजेंट है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, all are lined by mucous membrane, all are lined by mucous membrane। ठीक है, so mucous membrane present in respiratory tract, urogenital tract and gastrointestinal tract contains a group of organized tissue, a group of organized tissue, and this group of organized tissue, it is known as MALT। इसी को हम क्या नाम देते हैं? MALT। ये जो MALT है, it is responsible for, ये कह सकते हो MALT forms 50% of all lymphoid tissue प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी हमारे अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें 50% क्या है? माल्ट प्रेजेंट होता है। और इसके पास, इस माल्ट के पास कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स है जो माल्ट में प्रेजेंट है, दैट इज प्लाज्मा सेल्स। वो कौन से सेल्स होते हैं? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो माल्ट में हमने क्या डिस्कस किया? माल्ट क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, यानी कि वो टिश्यू जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है या प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है, उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का एक ग्रुप प्रेजेंट है, और उस ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? माल्ट नाम देते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो माल्ट है वो फॉर्म करती है अ टोटल ऑफ 50% of all the lymphoid tissue present in human beings। तो जितने भी हमारे अंदर lymphoid tissue present है, उसका 50% हमारा क्या है? माल्ट है। इस माल्ट के पास कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से हैं? प्लाज्मा सेल्स हैं। तो ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर जो हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में जो एंटीजेंस एंटर करते हैं, उनको किल करने का काम किनका है? इन एंटीबॉडीज का, जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।